पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग, दूर दूर तक फैली वादियां और हरियाली का दामन पसारे पहाड़ी ढलानों पर उगे चाय के बागान। यूं तो दार्जिलिंग की खूबसूरती को निहारने के लिए मीलों का सफर तय करके हजारों सैलानी हर साल इधर का रुख करते हैं, लेकिन दार्जिलिंग की एक और पहचान है, वो है यहाँ का तालीमी माहौल। दार्जिलिंग में कई नामी गिरामी स्कूल हैं, जहाँ से निकले होनहार तलबा ने अपने हुनर से मुल्क का नाम रोशन किया है। इन्हीं स्कूलों में एक है माउंट हरमन स्कूल। इसी माउंट हरमन स्कूल का हिस्सा रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज्जत माब अल्तमश कबीर साहब। 24 नवंबर 2012 माउंट हरमन स्कूल की तारीख का एक सुनहरा दिन, जब स्कूल के सैकड़ों तलबा ने अपने ही स्कूल के एक होनहार तालिब इल्म और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को अपने दरमियान पाया। मौका था माउंट हरमन स्कूल के 11वें स्पीच डे का। तलबा, असातिज़ा, साबिक असातिज़ा और साबिक तलबा की मौजूदगी में आली जनाब अल्तमश कबीर साहब का खैर मकदम किया गया। स्कूल के ऑडिटोरियम चैपल हॉल में अल्तमश कबीर साहब को उनके शाया निशान इस्तकबालिया दिया गया। माउंट हरमन। कबीर साहब को स्कूल की मैगजीन बतौर तोहफा पेश की गई। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज फर्नांडिस ने जनाब अल्तमश कबीर साहब का इस्तकबाल करते हुए इस दिन को स्कूल की तारीख का अहम दिन करार दिया। It's a singular pleasure and privilege to be able to welcome as chief guest to this auspicious occasion one of our old boys. I told our children many days in the past that the chief guest is a boy who sat in these benches and listened to the Bible readings and learned and took walks around the school. And today he has been elevated to one of the highest offices in the land, the Chief Justice of India, Justice Altamas Kabir. Warm welcome. 1955 और 1956 ये वो साल थे जब अल्तमश कबीर माउंट हरमन स्कूल का हिस्सा थे। आज जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से बेशतर के वालिदैन भी उस वक्त पैदा ना हुए हों, लेकिन अपने स्कूल के इस बेमिसाल तालिब इल्म का इल्म सबको है। माउंट हरमन का बच्चा बच्चा जानता है कि आज उनके स्कूल में किसका खैर मकदम किया जा रहा है। अपने उन दिनों को याद करते हुए अल्तमश कबीर साहब ने कई अहम वाकयात भी सुनाए। One of the most wonderful things that one could remember was when you came to the airport at Bagdogra. It was a small little place. It was a wooden structure. And when the boys all came up together in the central hall, we used to be served lunch. And it used to be a lovely lunch with lovely white basmati rice, round mutton balls. I mean, these things are memories which come back to you. कबीर साहब ने तब के दार्जिलिंग और आज के दार्जिलिंग शहर में आई तब्दीलियों पर भी अपना मौक़िफ़ रखा। Darjeeling has changed. A lot of things have changed here. The approach to the school was absolutely open from the Raj Bhavan onwards. There was hardly any buildings and structures. Today, everything seems to have become so narrow. The structures have come up. Darjeeling has spread almost to Sunada and Ghum. It used to be the Ava Art Gallery used to be then the outer limit. It used to be at the suburbs of Darjeeling. Today it's all Sunada and Ghum. Anyway, I guess progress and development has to take place. इस मौके पर जस्टिस अल्तमश कबीर साहब ने न सिर्फ एक अच्छे स्कूल की खूबियां बयान की, बल्कि उन इक़दार और मेयार का भी जिक्र किया जो स्कूल की बदौलत उन्हें मिली। But the values that you inculcate here today as students, and the value that you will acquire will stand you in good stead right throughout your life. Look to be or appear to be absolutely of very little meaning, but believe me, it is a discipline. It is a way of actually developing your character. There was a new building there also built over the tennis court which we used to have.
and the auditorium was on the third floor. Every Sunday, a batch of us boys, we would have to go there and get to scrub the floors. Not because he wanted us to scrub the floors, but because he wanted to teach us the dignity of labor. Now, these values, I don't think you will get in any other school, except schools like this. The values that we've learned has stood us in good stead all throughout. It's a very, very proud moment for me to be here as head of the Indian judiciary. I'm proud that I'm here as part of one of the students who was part of the school at one point of time. इस मौके पर कबीर साहब ने तालीम, खेल और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेकर उम्दा कारकर्दगी पेश करने वाले और स्कूल का नाम रोशन करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से भी नवाजा। इस मौके पर चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर साहब ने तलबा को ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने और मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल करने की तलकीन भी की। But one of the basic things which, in fact, I'd like to speak to the students about is that whatever most of us who were part of the batch of that year and who moved on to maybe other schools, to Calcutta Boys School and other schools, we became what we became or what we are today because of the basic grounding that we got here. We were not simply taught ABCD in school. ABCD has its own place. But in order to develop as a human being, we were given all kinds of other training as well. And basically, the training was to feel for others, courteousness, politeness, and to behave in a manner which was an all-round kind of development of a person's character. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमश कबीर साहब ने अपनी यादों को ताजा करने के लिए स्कूल का दौरा किया। वो हर उस मकाम पर गए जो उनकी यादों में आज भी जिंदा है। माउंट हरमन स्कूल की ये बिल्डिंग 1934 में वजूद में आई। इससे पहले इसे क्वींस हिल स्कूल के नाम से जाना जाता था, जिसकी बुनियाद 1895 में लेडी एमा एल नॉल्स ने रखी और साल 1926 में क्वींस हिल स्कूल की इमारत को इस मकाम पर कायम किया गया। बहरहाल उस जमाने का क्वींस हिल स्कूल और आज का माउंट हरमन स्कूल आज इस बात पर नाजा हैं कि यहाँ के एक तालिबे इल्म का शुमार मुल्क की नामचीन हस्तियों में होता है। इस बात पर स्कूल से वाबस्ता हर शख्स का इतराना लाजमी है और फितरी भी। हमें काफी गर्व है कि हमारे चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ से तालीम हासिल किए हैं। ये वो क्लासरूम है जिसमें बैठकर अल्तमश कबीर साहब ने अपने तालीमी सफर की शुरुआत की थी। यहीं बैठकर कबीर साहब ने अपने टीचर्स से कामयाबी की किताब का पहला सबक सीखा था। ये बच्चे ये तो नहीं जानते कि इनका मुस्तकबिल क्या है, मगर ये जानते हैं कि इस कमरे का माजी क्या है, जो आज इनका क्लासरूम है। माउंट हरमन ने कबीर साहब को कामयाबी और कामरानी हासिल करने की बेहतरीन तरबियत दी। यह हॉस्टल उसी तरबियत का हिस्सा है। कल इस हॉस्टल में आज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना बचपन गुजारा और आज ये बच्चे ये जाने बगैर कि इनका कल क्या होगा, अपने